Today, we're going to start a new topic. It's a short topic, labor turnover and absenteeism. Labor turnover का मतलब, I taught you in payroll. You're in payroll, right? क्या होता है labor turnover? In a particular period of time, how many employees have Left the organization or unit. This is known as labor turnover. Now, labor turnover is a serious problem which the organizations are facing right now. The reason being that employees are very ambitious. Employees are very learned. They demand for some quality of work life. If you as an organization fail to provide that quality of work life, you will fail to retain those employees. Then the other thing is, it is very obvious that if you get better opportunities, if you're working in company ABC and you get better opportunity in a company XYZ, it is very obvious for you to move, right? If you have better career advancement opportunities, if you have better salary structure, then you will tend to move. Lekin apart from that, labor organization, labor turnover to some extent is okay. Why is it okay? To some extent it is okay. बताइए क्यों? थोड़ा सा लेबर टर्न, थोड़े अमाउंट में लेबर टर्नओवर होना इज फाइन. Why? इतना एचआर पढ़ लेने के बाद अब आप लोग इस चीज को बता सकते हैं. To an extent, why is labor turnover considered to be fine by the organizations? Why? Because, say for example, you are an employee who is not willing to work. Will you put your 100%? No. Unless and until the employees leave the organization and some fresh employees join, there will be no scope for fresh blood into the organization. New employee means a fresh idea of working, fresh notions, new skills. Okay, so to a great extent, we can say that there is a limit to which labor turnover is acceptable or is fine by the organization. जैसे 5%. 5% तक ये माना जाता है कि 5% लेबर टर्नओवर एक्सेप्टेबल है. यानी इससे बहुत इतना है तो बहुत घबराने की बात नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बट if this labor turnover exceeds 5%, then there is something that needs your serious contemplation for that organization. अच्छा देखो, जब बुखार होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है? We come to know that there is something not fine with our body. Yes. कुछ प्रॉब्लम है, मतलब there is a symptom कि there is something not right with our body. But what is not right with your body is something that you need to find out after diagnosis. यही होता है. Yes. आपको फीवर होता है, which means that this surfaces some kind of problem in your body, but once you get diagnosed, you come to know कि क्या problem है. उसी तरीके से लेबर टर्नओवर एक सिम्टम है कि अगर बहुत ज्यादा लेबर टर्नओवर आपके ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, this means कि there is something not right with your organization, and this indicates the poor health of your organization. Okay. Now, labor turnover, poor health of the organization, and the management needs to fix it. But the management can fix labor turnover only up to an extent, because there are avoidable and unavoidable both reasons of labor turnover. यानी एम्प्लॉइज के छोड़ के जाने का कारण दोनों होता है.
अवॉइडेबल यानी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, एंड अनअवॉइडेबल which can be avoided and the problem can be fixed by the management. Understood? And there is a labor turnover cost associated with it. क्यों labor turnover एक problem है? ये आपको IT वगैरह में बहुत मिलेगा, ज्यादा मिलता है, और नीचे लेवल पे ऑपरेटिव जो स्टाफ्स होते हैं, ऑपरेटिव वर्कर्स होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा मिलता है। ओके, लेबर टर्नओवर का कॉस्ट अब सोच के तुम लोग हमको बताओ क्या क्या कॉस्ट एसोसिएटेड होता है टर्नओवर के साथ। पॉइंट नंबर 1 बताओ, इतना पढ़ने के बाद आई कैन एक्सपेक्ट दिस आंसर। हाँ, वेरी गुड। ट्रेनिंग कॉस्ट जाता है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, और बताओ और क्या क्या होता है। ट्रेनिंग कॉस्ट में आ जाएगा वो, और बताओ बोलो संस्कार। बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स छोड़ के गया तो इससे एम्प्लॉयर को क्या नुकसान है ये बताओ। होगा Anjali is not confused. If a worker who has been working for 3 years at a place and a machine, and you and you hired a new worker to work on that machine, are there not more chances of accidents? See, like accident can happen to even a person who has worked for 25 years, but the chances increase many folds more when you are working with a fresh employee. Understood? Rajma. Overtime cost. आपका वर्कर आज के आज छोड़ के चला गया, फ्रेश वर्कर हायर, रिक्रूट करने, ट्रेन करने सब में 3 महीने लगा। 3 महीने क्या काम बंद रहता है? नहीं। जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनको ज्यादा पैसा देके ओवर टाइम करा के उस चीज को कंपनसेट किया जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज ओवर टाइम कॉस्ट। और आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में ये लिखा हुआ है लॉ की जब वर्कर से ओवर टाइम कराया जाएगा तो उसको उसके वेज का दुगना दिया जाएगा ओवर टाइम आवर्स में। मान लो 1 घंटे का उसका सैलरी बनता है अगर 200 रुपए 1 घंटे का, तो वो ओवर टाइम में जब वो 1 घंटा कर रहा है तो उसको कितना दिया जाएगा? 400 रुपए। ठीक है, तो ये ओवर टाइम कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। उसके बाद और एक चीज है, देखिए जब फ्रेश एम्प्लॉय आया तो आप वर्कर को तो उस उतना ही सैलरी पे रखेंगे जितना उस पोस्ट का पैसा है, लेकिन क्या उसकी प्रोडक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग होती है? स्टार्ट में नहीं होती है ना, तो द वेज इज ऑलवेज इन एक्सेस टू हिज प्रोडक्टिविटी, राइट? वो भी कॉस्ट जाता है। पॉइंट्स लिख लो, फिर अलग से नहीं लिख पाएंगे इसको, ठीक है? वेज इन एक्सेस टू प्रोडक्टिविटी, wage in excess of productivity. बोलो, जोर से बोलो। क्या बताओ, जैसे क्या सोच रहे थे? चोट लग गई फिर? हाँ, तो increased accident लिखे तो है, there are chances of increased accident. एक और फैक्टर होगा, एक बात बताइए, आपके क्लास में 10 लोग मिलके पढ़ रहे हैं तब जो आपके मोरल पे असर होता है, और कोई 2 बंदा सिर्फ पढ़ता रहेगा उस पे जो असर होता है
दोनों में फर्क होता है कि नहीं? होता है ना। तो अब आप सोचिए कि एक वर्कर की टीम है जो काम करती है, वर्कर्स अगर छोड़ छोड़ करके जाने लगेंगे तो क्या बाकी के जो वर्कर्स बचे हैं उनके मोराल पे असर नहीं होगा इस बात का? होगा ना, डिमोटिवेट होंगे, उनके अंदर में इंस्टेबिलिटी की भावना बढ़ेगी। अंडरस्टूड? सो ठीक है, देखो फटाफट। लेबर टर्नओवर का डेफिनेशन लिखो जल्दी से। द रेट ऑफ चेंज इन द वर्किंग स्टाफ wait. The rate of बता, the rate of change in the working staff of a concern during a definite period is labor turnover. Concern during a definite period is labor turnover. लेबर टर्नओवर देखो, चेंज किस तरीके से आता है। तुम लोग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चेंज तो तब भी आएगा जब बाहर से कोई बंदा, बीबीएफ का क्लास चला था कुछ दिन, चेंज आया था ना क्लास में, तुम्हारे में से एक बंच ऑफ स्टूडेंट को हटा दिया जाए तो भी चेंज आ जाएगा। तो ये दोनों ही केसेस में लेबर टर्नओवर से चेंज तो आ ही रहा है। ईदर यू एक्सेस देम यानी और हायर कर लीजिए, या फिर सेपरेट देम, उनको हटा दीजिए। ठीक है, then that is known as labor turnover. So labor turnover will lead to either accession or separation, and both of which will lead to a change in the work group. ठीक है, ग्रुप डेफिनेशन ये फॉर्मूला लिखिए जल्दी से। लेबर टर्नओवर ब्रैकेट में डालिए, सेपरेशन रेट इज इक्वल टू लेबर टर्नओवर ब्रैकेट में सेपरेशन रेट इज इक्वल टू number of separations in a year, number of separations in a year divided by average number of workers in a year into 100. Number of separations in a year divided by average number of workers in a year into 100. Now, as we discussed, let's discuss causes of labor turnover. इसका दो कॉज होता है, एक अवॉइडेबल जिसको अवॉइड किया जा सकता है, एक अनअवॉइडेबल। जो अनअवॉइडेबल है वो पहले डिस्कस करो। क्या होगा अनअवॉइडेबल रीजन जिसको भी रोका नहीं जा सकता है? वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं किया जा सकता है, कर सकता है ना मैनेजमेंट ठीक, अनअवॉइडेबल एकदम। वेरी गुड। एक्सीडेंट और change of locality, चेंज ऑफ लोकेलिटी, वेरी गुड। death and retirement. हाँ, आर यू गूगलिंग इट? नो मैम, मतलब रिटायर होने के बाद उसको थोड़ी रोका जा सकता है, मर जाएगा तो भी नहीं रिटर्न कर सकते। और
अच्छा, पर्सनल बेटरमेंट यानी हम आपको बताएं कि अगर एम्प्लॉय को आपको कहीं 35,000 मिल रहा है, कहीं और 50 मिलेगा, तो ऑब्वियसली आप जाइएगा और वो कंपनी नहीं रोक सकती है। पर्सनल बेटरमेंट जो भी तुमने बोला वो उसमें आता है। एंड ग्रोथ नहीं, मैम घर का झगड़ा, क्या? एम्प्लॉय में मैम ग्रोथ नहीं हुआ। मैम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स लाइक 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 क्या, you should have come up with लाइक this. मैरिज, मैम लाइक मैरिज, And I confirm this कि you are googling. Domestic affairs. ये कैसे होगा? Labor turnover is most in case of girls after marriage. The reason for a girl to leave job due to marriage and pregnancy is the most out of any other reason. दोस्तों ये डेटा बताता है कैसा होता है। तो ये डोमेस्टिक अफेयर्स, मैरिज एंड प्रेगनेंसी in case of women employees. देख लो उसको। देखो HR बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ लोकेलिटी सी, देखो you are studying in this college because somehow you could manage to come down to Patna, even if you are not a resident of proper Patna. लेकिन ये कॉलेज अगर चंडीगढ़ में होता तो तुम एडमिशन लेते? नहीं लेते, ठीक है। वो हॉस्टल में जाके रहना अलग बात है। तो वर्क की वजह से भी, जैसे आप पटना में रह रहे हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पटना सिटी में है, आपने ज्वाइन कर लिया शुरू में, लेकिन अगर आपको कोई बोरिंग रोड में मिलेगा तो क्या आपको कन्वीनियंस नहीं होगा वहां ज्वाइन करने के लिए? तो आपका ये टेंडेंसी रहेगा कि यू शिफ्ट योर लोकेलिटी, यू शिफ्ट योर प्लेस ऑफ वर्क। ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि यहाँ क्लास में बैठ के समझना मुश्किल है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज जो होता है ना, वो बहुत दूर होता है सिटी से, तो आने और जाने का कम्यूट टाइम दिन का 2-2.5 घंटा चला जाता है। सो इन दैट केस people have a tendency of labor turnover. Okay, okay. Avoidable reasons चाहिए अब, जिसको कि मैनेजमेंट फिक्स कर सकती है। बहुत अच्छा है। वर्किंग कंडीशंस, बेटर इक्विपमेंट, वर्किंग कंडीशंस यस, मतलब लो सैलरी है ना, लो रेम्यूनरेशन, लेस करियर ग्रोथ, less career growth opportunity and coaching आ तो सकता है। प्रोसेस ऑफ लेबर टर्नओवर, देखो ये फिगर से बताया गया है कि लेबर टर्नओवर जनरली, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रू, बट लेबर टर्नओवर ऑपरेटिव एम्प्लॉइज में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है। It is found more in operative employees than in executive class. इसीलिए कोचिंग को बहुत कॉन्क्रीट रीजन नहीं मान सकते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। और कोचिंग होगा तो क्या 1-2 लोगों का होगा, सिर्फ की पर्सनल पे कोचिंग होती है ना। We are talking in general about labor turnover. हाँ, उनकी कोचिंग नहीं होती क्योंकि वो अबंडेंट में रहते हैं। चलिए और
पुअर वर्किंग कंडीशंस में सब कुछ आ गया, जैसे बैड वेंटिलेशन, बैड लाइट। अच्छा, और एक देखो, पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन? रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। देखो, पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स